हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साई एकेडमी। एक बार फिर से सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साई एकेडमी पे। तो हमारे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी टाइप थ्योरीज़ जो हैं या टाइप अप्रोच जो है पर्सनालिटी की, उसके बारे में। तो जो ट्रेट अप्रोचेस हैं उसके बारे में हम इस क्लास के बाद बात करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे केली का, जो जॉर्ज केली का पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी जो है उस पे हम आज की क्लास में बात करेंगे। सो इन टुडेज क्लास वील टॉक अबाउट जॉर्ज केलीज पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। In the previous class we talked about the type approaches towards personality, and about the trait approaches we'll study in the class after this. So since these are recorded classes, you can watch them in whichever order you desire. So without further ado, let's start with today's topic. Now this personal construct theory, as we just mentioned, was given by George Kelly in the year 1955. So the personal construct theory was given by George Kelly in 1955. तो इस थ्योरी में हम क्या देखते हैं जो जॉर्ज केली ने दिया था। इसमें जॉर्ज केली का जो मेन फोकस था वो था, अनलाइक लेट अस से फ्रॉइड यूज्ड टू बिलीव दैट the human behavior, the personality of an individual is more deterministic, कि आपके आसपास जो environment है उसका इफ़ेक्ट आप पे जो पड़ता है वही शेप करता है, आप जब बड़े होते हो वही शेप करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके इंडिविजुअल को। वर्सेस जो हमारा पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट थ्योरी है वो एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है। So our personal construct theory is non-deterministic as opposed to Freud's theory, because it believes that people are active, they actively want to understand the world and they actively participate in how they turn out to be in the future. So they have an active role to play in how they turn out in the future. That is what was believed by personal construct theory. इसमें माना जाता था कि जो इंडिविजुअल है वो जैसा भी बनता है, जैसा उसका सेल्फ, जैसा उसका एक पर्सनालिटी डेवलप होता है, उसमें उसका एक बहुत बड़ा हाथ, उसका खुद का एक हाथ होता है, ना कि सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। तो इसीलिए ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं। बट अगर हम मेनली देखें इस थ्योरी की एक और बात ये है कि अनलाइक द बिहेवियरिस्ट एंड अनलाइक फ्रॉइड, तो ये थ्योरी ये समझने की कोशिश नहीं करता है कि बिहेवियर क्यों अकर हो रहा है, कि वाई एन इंडिविजुअल इज शोइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर। Unlike the behaviorist or Freud, this theory does not focus on that, does not focus on understanding why people behave how they behave. Rather, what this theory believes in, what this theory focuses on is how do people perceive anything around them, the world around them. How do people understand, what are the different interpretations that people have of the world around them, of the things around them, of everything that is happening around them. So this theory instead focused on how different people understood in their own individual way the world around them. So this is what the if we talk very generally what the personal construct theory focuses on. Now we will move on to discussing what the assumptions, some basic assumptions of this theory was. Now before we move on with the assumptions of this theory, let us quickly discuss what these personal constructs are. So these personal constructs are basically bipolar dimensions that help us understand some event or some individual. For example, we can take friendly versus unfriendly, or let's say trustworthy versus untrustworthy.
सो वी टेक बाईपोलर, दैट इज दो डिफरेंट एंड्स हैं उसके, दो एक्सट्रीम एंड्स हैं कि फ्रेंडली है वर्सेस अनफ्रेंडली है। आप ऐसे जज करते हो कि जो सामने वाला है एक इंसान, क्या वो फ्रेंडली है कि क्या वो अनफ्रेंडली है, वो हम और अच्छे से वील अंडरस्टैंड व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द कोरोलरीज। बट नाउ we need to understand that these personal constructs are basically bipolar dimensions, example friendly or unfriendly, that we use to understand an individual or an event. So this is what our personal constructs they actually mean. Now moving on with the assumptions of this theory. So the very first is constructive alternativism, I'm sorry. So this means, what this suggests is that there is no one true reality. So we'll write it here, there is no true reality, because there could be alternative interpretations of a certain event, that there are, or that there could be alternative interpretations of an event, and that you can, the belief that you can adjust your interpretations according to which one is working out or which one is not. तो जो कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिज्म है उसमें तो उसमें ये देखा जाता है, ये माना जाता है कि एक कोई पर्टिकुलर रियलिटी नहीं है, एक कोई फिक्स रियलिटी नहीं है, कि ऑल्टरनेटिव आप इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि इवेंट के, उसको समझने के लिए डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या सूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से देयर इज़ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, लेट अस से, जो फेल हो रहा है एक एग्ज़ाम में, तो उसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। या तो वो ऐसे मान ले कि मेरा IQ एकदम लो है कि मेरे से नहीं होगा, या फिर वो मान ले कि मे बी मैंने इस बार अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, या कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस थी जिसकी वजह से आई कुडंट डू माई बेस्ट। सो इस बार वो और मेहनत करेगा, और जो उसने कमियाँ मे बी लास्ट अटैम्प्ट में अपने की थी, वो अपने जो गलतियाँ हैं वो नहीं दोहराएगा। So like there could be different alternative interpretations of a particular incident or a particular while you understand somebody's behavior. So that is what is constructive alternativism. Next is our so like scientists, what I meant by this is that what George Kelly believed was that people, they think like scientists. They make hypotheses about a situation, and then accordingly they prove it, disprove it, and then form their beliefs accordingly, and perform actions accordingly. तो जॉर्ज केली जो है वो मानते थे कि जो ह्यूमंस हैं वो साइंटिस्ट की, सारे ह्यूमंस साइंटिस्ट की तरह हैं। वो लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, तो इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या वो प्रूव होता है, डिसप्रूव होता है। कि लेट अस से कोई इंडिविजुअल मानता है कि हाँ, मतलब ये जो इंसान से मैं मिल रही हूँ ये बहुत अच्छा इंसान है, पर उसको हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली इसको प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझते हैं, अकॉर्डिंगली अपना परसेप्शन बना के चलते हैं। फाइनली वी हैव फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन। तो जो इस पूरे थ्योरी का मेन फोकस है वो है इंटरप्रिटेशन, ना कि कुछ भी और, कि कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो जो फोकस है दैट इज़ नॉट द इवेंट, बट रादर द फोकस इज नॉट द इवेंट बट द इंटरप्रिटेशन। सो यू गेट दैट, राइट? सो इंटरप्रिटेशन जो है इवेंट का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय उस एक्चुअल जो इवेंट है उसके। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हो गए हैं जॉर्ज केली के थ्योरी के। नाउ वी विल मूव ऑन टू द 11 इम्पॉर्टेंट कोरोलरीज जो जॉर्ज केली ने दी थी। So let us move on to discussing what the 11 important corollaries are that were given by George Kelly. So corollaries, first of all, if we try to understand what these mean, so let's not see them as a very difficult kind of thing or very out of the world thing. Simply understanding what corollaries mean is that they are a framework, a guideline that helps you understand how personal constructs that we just talked about, which are bipolar dimensions to understand personality, like trustworthy, untrustworthy, friendly, unfriendly, that kind,
तो जो ये पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं उनको समझने के लिए कि वो कैसे डेवलप होते हैं, कि कैसे वो ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाता है, ये पूरा समझने के लिए जॉर्ज कैली ने 11 कोरोलरीज दिए हैं, या आप मान लीजिए डिमेंशंस दिए हैं, आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं, जिनको उन्होंने कोरोलरीज का नाम दिया है. सो दे आर बेसिकली 11 in number, 11 corollaries that were given by George Kelly, which are basically they are frameworks or guidelines to understand or elaborate on what the personal constructs are, that how they develop, how they are organized and how they are used, as we just discussed. तो ये हमारे कोरोलरीज हो गए जो कि पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट्स को समझने के लिए बने थे, और 11 कोरोलरीज जॉर्ज कैली ने दिए थे, जिनको हम एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन. सो द कंस्ट्रक्शन कोरोलरी बिलीव्स दैट आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप यूज़ करते हो आपके फ्यूचर में जो आप एक्शंस करोगे उनको प्रेडिक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से देयर इज़ अ स्टूडेंट जो हमेशा या जिसने 2-3 बार पास्ट में हैंड रेज किया और क्वेश्चंस पूछे टीचर से, और उसने देखा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उससे इम्प्रूव हुई. लेट अस से देयर इज अ स्टूडेंट हु रियलाइजेस दैट द लास्ट 1 or 2 times they used to raise their hands, and then when the teacher to maybe question or maybe raise a doubt, and the teacher clarified their doubts, and this further helped them in or this help them understand the concepts better. This improves their understanding. So now the student will again in the future also they will keep on raising their hand, keep on asking questions, because in the past they have seen that this action of raising hands and asking questions was successful, has helped them in the past. So that is our construction corollary. Next we have our individuality corollary, where we see that different, which you already discussed once, that different people they can have different interpretations of a certain situation that has happened. For example, let us say there are 2 people, they have both lost their jobs, they were both laid off. One person, let's say person A, feels that this is the end of their life and there's nothing more to life, there's just nothing that they can do now. But person B, that they believe that this is like an opportunity to grow, that now they can look for another jobs, maybe they were feeling stuck in this particular job and now they want to look for new ones. तो इंडिविजुअलिटी जो कोरोलरी है इसमें बोला जाता है कि अलग इंडिविजुअल की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं एक सिमिलर एक डेफिनेट एक ही सिचुएशन को लेके, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके अलग इंडिविजुअल्स की अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है. जैसे कि अगर 2 लोग की जॉब चली जाती है, एक मान सकता है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और जैसे एक मान सकता है कि ये मेरे लाइफ का एंड है. So now next we talk about the third one, that is organization corollary. Here we see that there is this corollary rather believes that there is a hierarchy of constructs. कि जो कॉन्स्ट्रक्ट्स है उनकी हायरार्की है कि पहले एक ब्रॉड कॉन्स्ट्रक्ट आता है और उसके अंडर जो है नैरो कुछ कॉन्स्ट्रक्ट्स आते हैं, और जो ब्रॉड वाला है जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं वो नैरो कॉन्स्ट्रक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ब्रॉड कॉन्स्ट्रक्ट्स में हम देखें कि ट्रस्टवर्दी वर्सेस अनट्रस्टवर्दी, अब इसमें हम जो नैरो कॉन्स्ट्रक्ट है वो हम देख सकते हैं कि क्या वो क्या उन्होंने कभी बिट्रे किया है, क्या वो ऑनेस्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, उसके अंदर बहुत सारे सब कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं. सो ब्रॉडर में हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ट्रस्टवर्दी है कि अनट्रस्टवर्दी है. फिर हम नैरोअर में देखते हैं कि अगर वो ट्रस्टवर्दी हैं तो मतलब या ट्रस्टवर्दी अनट्रस्टवर्दी में अगर पूरा कॉन्सेप्ट को हम देखें तो उसके अंडर हम देखते हैं कि क्या वो ऑनेस्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, या उन्होंने कभी हमें बिट्रे किया है कि नहीं किया है. तो ब्रॉड के अंदर कुछ नैरो कॉन्सेप्ट्स आते हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द डाइकोटमी कोरोलरी, which suggests that each construct is divided, as we just discussed, into 2 poles or 2 opposites. तभी हम उनको bipolar बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी बोला कि अनट्रस्टवर्दी वर्सेस ट्रस्टवर्दी, या फिर लेट अस से आप एक फ्रेंड को काइंड मानते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपके अंदर एक बिलीफ है कि देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड अनकाइंड. You also believe that since this friend of mine is kind, so you also have this construct of unkind. So these exist in 2 poles or 2 opposite poles, bipolar, because you to understand
one individual, a certain situation or anything, you use bipolar constructs to understand them. So if one person is kind, let us say, then you also have this construct that somebody out there might also be unkind, just the opposite. So these are the first 4 corollaries. Now we'll move on to the next. Now on to our next corollaries. So the first one we'll talk about is our choice corollary. So in this, through this one, what Kelly wanted to portray was that people, they choose alternatives not randomly but to maximize their learning or their predictability. तो जो चॉइस कोरोलरी है, इसके थ्रू केली बोलना चाहते थे कि लोग अक्सर अगर कुछ एक चॉइस, इफ़ दे मेक अ चॉइस, अगर वो कुछ चूज़ कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर रहे हैं, तो वो रैंडमली नहीं करते हैं, बल्कि जो कि आपको प्रीटी ऑब्वियस लग सकता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि अपने लर्निंग को मैक्सिमाइज कर, जो भी उनके लिए बेनिफिशियल लगता है उस चीज़ को वो ऐसी एक ऑल्टरनेटिव को वो चूज़ करते हैं. For example, let us say there is a teacher, there is a school teacher, and they see that the method of teaching that they are using for a certain subject is not working. बस क्लास में आके मे बी वो लिख दे रहे हैं तो बच्चे उतना अच्छे समझ नहीं पा रहे हैं, और मे बी इट्स अ फिजिक्स टीचर, तो अब वो कोशिश करते हैं कि अगली बार वो इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं क्लासरूम में और एक्सपेरिमेंट्स में भी करके दिखाते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स ला के एटलीस्ट उनको लाइव दिखाते हैं, तब जाके वो देखते हैं कि या मे बी देयर आर चांसेस कि फिर भी बच्चे इंटरेस्ट ना लें, बट फिर भी वो उनको लगता है एक डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करने से मे बी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए, मे बी बच्चे इंटरेस्ट लें. तो ये जो टीचर हैं, इन्होंने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज़ किया जिससे उनको लगता है उनकी ग्रोथ होगी, उनके बच्चों की ग्रोथ होगी. या फिर हम किसी भी चीज़ में देख सकते हैं, मे बी हमारे पढ़ने का एक तरीका सही नहीं हो रहा था फॉर सम एग्ज़ाम, तो हम एक दूसरा अप्रोच ट्राई करते हैं जो कि हमें लगता है और बेटर होगा हमारे लिए, हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा. सो दिस इज़ व्हाट आवर चॉइस कोरोलरी इज़. द नेक्स्ट इज़ द रेंज कोरोलरी, विच सजेस्ट दैट so each concept could be applicable, some particular construct could be applicable in one situation, but it necessarily is not applicable in all situations. So it is not necessarily applicable universally, बट एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मे बी एक कॉन्स्ट्रक्ट जो है एप्लीकेबल हो, बट हमेशा हो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर सिचुएशन में हो ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं काइंड अनकाइंड, हम बहुत बेसिक लेके चलते हैं, तो काइंड अनकाइंड में हम देख सकते हैं, एक सोशल सेटिंग में हम देख सकते हैं हाँ कि कोई इंसान काइंड है या अनकाइंड है. बट हम अगर सब्सटेंस ले लें, कोई नॉन लिविंग थिंग ले लें, अगर चेयर टेबल ले लें, तो उनके बारे में हम नहीं बोल सकते कि वो काइंड है कि अनकाइंड है, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग ऑफ कोर्स. सो दैट इज़ आर रेंज कोरोलरी कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर सेटिंग में एप्लीकेबल होगा, हमेशा हर चीज़ में एप्लीकेबल हो ये ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट इज़ आर एक्सपीरियंस कोरोलरी. तो इसमें माना जाता है कि पीपल कैन हैव सर्टेन बिलीव्स, बट when they see that they are failing, or when they see that this particular construct is not applicable anymore, so they tend to change it. So they are flexible. So what this says is that people when they see that some construct is failing, they adapt that construct. When some constructs they evolve with new experiences. So whenever let's take an example, अगर जैसे एक इंडिविजुअल है, उनका ये मानना था कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अनफ्रेंडली होते हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ दे माइट सीम टू मैनी पीपल. बट देन दे कम अक्रॉस समबडी, मे बी अ फ्रेंड or maybe a colleague, or not a friend, let's say a stranger, but they come across somebody who they see that they are very shy, they are very reserved, but then they are very kind, they are very helpful. तो तब ये इंसान फिर उसका व्यू बदल जाता है, और फिर वो क्योंकि उनका जो एक बिलीफ था, एक कॉन्सेप्ट था, वो फेल हो गया, तो अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल फिर अपने न्यू एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं अपने बिलीव्स को, अपने कॉन्सेप्ट को. सो दैट इज़ आर एक्सपीरियंस कोरोलरी. नेक्स्ट इज़ आर मॉड्यूलेशन. सो हियर व्हाट दे मीन इज़, मॉड्यूलेशन में एज इट्स रिटन कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं और कुछ जो काफ़ी रिजिड होते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबल वर्सेस ज़्यादा रिजिड. तो जैसे लेटेस्ट से एक इंडिविजुअल है, उसके जो लेटेस्ट से राइट और रॉन्ग का कॉन्स्ट्रक्ट अगर हम लेते हैं, वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग. सो फॉर वन इंडिविजुअल मे बी दैट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट और रिजिड, they have very rigid concept of right or wrong. So let's say their morality is very rigid कि this is right and this is wrong, there is no in between, there is no subjectivity. तो ऐसे इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना कि एक एम्बिगिटी भी हो सकती है, एक
एक अलग अलग इंटरप्रिटेशन, जैसे कि मैंने कहा सब्जेक्टिविटी भी हो सकती है मोरालिटी में, वो बिलीव नहीं करेगा, वर्सेस एक और इंडिविजुअल जो फ्लेक्सिबल है इस एरिया में, जो काफ़ी सब्जेक्टिविटी में बिलीव करता है, ऑब्जेक्टिविटी में नहीं, सिंपली अंडरस्टैंडिंग, तो वो बहुत रिजिड नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, और डेफिनेट एक टर्म नहीं दे देंगे उनको, टैग नहीं दे देंगे मोरालिटी का, राइट का या रॉन्ग का। तो दैट इज़ व्हाट मॉड्यूलेशन इज़, कि बेसिकली दैट सम कॉन्सेप्ट्स आर दे कुड बी रिजिड एंड सम कुड बी फ्लेक्सिबल. Next we'll talk about the fragmentation corollary, which suggests that inconsistent constructs could exist in different kinds of situations. कि an individual can have different kind of constructs, different kind of inconsistent constructs in different situations or contexts. For example, let us say there is an individual who believes that they are very confident when it comes to or maybe they believe that they are an extrovert when it comes to workplace, but when it comes to social gathering, whenever they go out with friends, they feel like they are not as confident or they are not as outspoken as they usually are in the workplace. So this individual, they can have inconsistent different constructs depending on different contexts, that is workplace versus other social events. So this is our up until now we have discussed 9. There are 2 more remaining, then we'll quickly wrap it up. Let us now talk about the last 2 corollaries given by George Kelly. So here we see the commonality corollary. Here it is said that shared constructs lead to shared understanding. तो इस कोरोलरी में बोला जाता है कि आपके जो सिमिलर कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, जो शेयर्ड कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, उनकी वजह से आपका एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनता है. हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस से पहले हम ले लेते हैं एशियन कल्चर. तो एशियन कल्चर में वी सी देयर इज़ अ कलेक्टिविस्टिक अप्रोच, अ कलेक्टिविस्टिक काइंड ऑफ कल्चर बेसिकली वी सी इन द एशियन कम्युनिटीज़, बिकॉज उनका सिमिलर कॉन्सेप्ट है. उनके जो फैमिली रोल्स हैं और जो उनका सोशली जैसे वो ग्रो करते हैं, वो देखते हैं कि एक सर्टन वे में हम अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, अपने से बड़ों को, अपने आसपास के लोगों को ट्रीट करते हैं. तो 2 इंडिविजुअल्स जो एशियन कल्चर में ही पैदा हुए हैं, तो काफ़ी उनमें सिमिलैरिटीज़ होंगी, उनके अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी. वर्सेस अगर एक एशियन है वर्सेस एक लेटेस्ट से वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है, तो उनके फिर डिफरेंसेस आ जाएंगे. एक का कलेक्टिविस्टिक होगा, एक का इंडिविजुअलिस्टिक होगा, तो ये डिफरेंसेस आ जाएंगी. सो कॉमनैलिटी में हम देखते हैं कि जो शेयर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेटेस्ट से शेयर्ड एक सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह से एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा. सो दैट इज़ आर कॉमनैलिटी कोरोलरी. नेक्स्ट इज़ आर सोशलिटी. So here what we see is that we understand others constructs. When we understand others construct, that enables us to effectively interact in a social setting. तो जब हम दूसरों के कॉन्स्ट्रक्ट को समझते हैं, फॉर एग्जांपल एक जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट के जो कॉन्स्ट्रक्ट हैं, जितने भी उसके अलग अलग एरियाज़ हैं कॉन्स्ट्रक्ट के, उसको वो समझने की कोशिश करता है, और इसी से फिर एक इफेक्टिव सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है, एक रैपो बिल्ड होता है, और वो हेल्प करता है थ्योरी को आगे बढ़ने में, थेरेपी को आगे बढ़ने में. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड अदर्स कॉन्स्ट्रक्ट्स, दैट इज़ व्हेन एन इफेक्टिव social interaction could be established. So this is all about our 11 corollaries. Let us quickly summarize this entire theory and then we'll be done with our today's topic. अब हम finally एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि एक समराइजेशन बोल सकते हैं इसको, ताकि हम समझें कि केली का क्या पर्सपेक्टिव था ह्यूमन नेचर को समझने के लिए, उनका क्या अप्रोच था, क्योंकि ये पर्सनालिटी की थ्योरी के अंडर आता है. सो द फर्स्ट वन इज़ फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, जो कि हमने देखा कि जो केली का फोकस था वो था फ्री विल पे, ना कि डिटर्मिनिज्म पे, कि आप फ्रीली जो आप चॉइसेस आप खुद से लेते हो, दैट डिटरमाइंस हाउ यू टर्न आउट टू बी एंड नॉट योर सराउंडिंग्स, द एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ जो सेकेंड है नेचर वर्सेस नर्चर, इसमें हम देखते हैं कि जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं वो बनते हैं एक इंटीग्रेटिव अप्रोच से, कि आपका नेचर यानी कि आपका एक इन्नेट टेंडेंसी होता है एक कॉन्स्ट्रक्ट्स फॉर्म करने का, और बिसाइड्स दैट आप जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे भी आपका जो नर्चर आ जाता है, एक्सपीरियंस से भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बनते हैं, जो पर्सनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनते हैं. फिर उसके बाद आता है यूनिकनेस वर्सेस यूनिवर्सैलिटी.
तो यूनिकनेस तो हमने देखा कि केली मानते थे कि सबका अपना अपना इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन होता है एक सर्टेन सिचुएशन का, लेट्स से। पर यूनिवर्सलिटी एज एन हम देखते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, एक शेयर्ड जब कल्चर होता है, एक शेयर्ड जब कॉन्स्ट्रक्ट होता है, तो उसका अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंडिंग भी वैसे शेयर्ड होता है। तो यूनिकनेस और यूनिवर्सलिटी को भी एक तरीके से इंटीग्रेट करके केली ने उसकी बात की है। ऑल्दो उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ होते हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होते हैं, बट फिर जब कुछ एक सिमिलर आप शेयर करते हो कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होती है, अफेक्ट होती है। एंड नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ग्रोथ एंड चेंज कब होगा आपका अकॉर्डिंग टू केली, इज़ व्हेन यू आर flexible, that when you are ready to make changes in your beliefs, in your constructs, once you find that that your constructs, that your beliefs are not right, so that is when you will grow and change। ये हम naturally अपने in general अपने life में भी देखते हैं। if you are ready to change, if you are ready to मेक चेंजेस इन योर सेल्फ, कि आपको लगता है अगर आपने कुछ गलती की है तो आप उसमें खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट केलीज पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट थ्योरी। सो दिस इज़ इट फॉर आवर टुडेज क्लास। Once again, please do like, share and subscribe if you liked our class, and the link to our mock tests that are provided by Sai Academy are provided in the description below. Besides, we also provide live classes for UGC NET. Please do go through the link that is given for our website in the description again. So thank you so much for learning with me today. Have a nice day.